lot of in public sector. But today, what is the situation? When they are being asked to go away or to look at some other avenues to mop up insurance revenue by stopping their motor business and health sector. The reason being that whatever revenue is earned, the claim payment is much more than the revenue. And therefore, they have been incurring losses. And then came the issue of infusion of capital, which the government of India, they did it in financial year 1920, 2021 in 2 tranches, and some 17,500 crores were infused. Recapitalization was done in these 3 companies. The turnaround, after this, the turnaround is very evident. If we go by the figures, that United India Insurance has made a remarkable turnaround, reducing its losses from 5,000 crores in financial year 23 to a profit of 19 crores in financial year 23-24. National Insurance has also significantly narrowed its losses from 3,800 crore in 23 to 187 crores. And similarly, Oriental Insurance also did its bit, where they are cutting down the losses and they are moving towards profit-making economy for their organizations. And as far as New India Assurance is concerned, there are 4 insurance companies out of that New India Assurance company, which has been doing extremely well. They have done 1,000 crore profit in the last year. This time it is 1,100 crore. But these things which are being pushed on them, what kind of level playing field is being given by the government and ensured by the government to see that private players who have entered the industry some 20 years back, now they have taken over, they are in the race to take over these public sector companies. The level playing field I'm referring to, because social sector schemes which are given by the public sector companies, these private players never venture into all these schemes because they are no profit-making schemes. Rural insurance is also taken up by the public sector, which they are doing it diligently, but absolutely at no reward or no award or no appreciation rather. But when you come to restrict these insurance company, public sector insurance companies, government seems to be very harsh, and this should not be done, as public sector banks have seen that over the years when the NPAs grew, over the years for a decade or so, they will give me 2 to 3 minutes. This is very important because please, madam. Madam, please, only 5 minutes. These are the issues. If I don't mention, these are the issues. He's the only man going to speak. These are only the member from our side. He's the only member going to speak from our side. From my party says, please. If I don't speak, I mean, if you don't want what the real ground reality is, I'll sit down, madam. I have no issues. Please. So, against this backdrop, how are we going to match? Tomorrow, the public sector companies who are doing well, Piyush is here, I mean, who is seen over the years. If we don't give them the kind of impetus or the kind of incentive which is needed at this stage, the things will not be in the interest of the Indian economy, and it will be suffering like, I mean, any other thing. Today, what is the scenario? For last more than 5 to 7 years, general insurance industry, all 4 companies haven't seen their wage revision. LIC is doing well, LIC has got its back. But what about other companies? Why employees are being restricted? Why employees are being deprived from their constitutional right, I would say. They have been putting in every effort to see that the company does good. So my request would be that look at the private players, look at the scenario in the public sector, and there has to be, DFS has accepted the fact that there are no recruitments in the public sector, which owns the responsibility to shoulder that, to see that the unemployment aspect is addressed in a big way, which is not happening. So employment needs to be opened up in public sector companies. Wage revision needs to take place. And with this, Mediclaim, which is needed by the people at large. Nitin Gadkari has written to Finance Minister time and again, Arvind Savantji, myself, we have been crying at top of our voices. We have been making for the people that 18% which has been laid on GST on the health policies and LIC policies. This is beyond affordability. So this needs to be addressed. Madam, the last point, sir, last point I'll make. 1 minute. Sir, last point I'll make. Madam, you are supporting, in the morning you are supporting this issue. This is more important. Please let him conclude. Let him conclude. One point. He'll conclude. Please, one only last point I'll make. Honorable Finance Minister has come out with the schemes which are really needed, employment schemes with ELI, employment-linked incentives. These are the schemes given in 3 schemes have been spelled out. But what the reality is,
really manufacturers and really private entrepreneurs from MSME to high ends, are they really willing to infuse their own capital? Private capital is coming really, or I mean, if otherwise these schemes which are really look good on the paper will not come into practicality anymore. And if that is to be stopped, unemployment really is to be answered, or it is to be addressed. These are the things which are right in front of you. Otherwise, schemes after schemes will be spelled out. But absolutely, unemployment will be a biggest problem for the थैंक यू सभापति महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल 2004 पे बोलने का मौका दिया। ये फाइनेंस बिल 2024 एक विकसित भारत की ऐसी आधारशिला है जो कि एक आर्थिक यात्रा का ऐतिहासिक कदम है। मैं इस चर्चा के इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। राजकोषीय नीतियों का ये बिल कोई संग्रह नहीं है, लेकिन ये फाइनेंस बिल 2024 विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ये बिल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है, और ये बिल पारदर्शिता, दक्षता को सुनिश्चित करने का है। कर ढांचे को सरल बनाए जाने का इसमें प्रावधान रखा गया है। और अगर मैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पे अगर जाऊं तो ये उचित होगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के कुछ 2 शब्द में बोलना चाहता हूं। किसी राज्य को असभ्यता से लेकर सबसे अधिक समृद्धि तक ले जाने के लिए शांति, आसान कर और न्याय का सहनीय प्रशासन ही सबसे जरूरी है, जो कि ये बिल सारी जरूरतों को, जो कंडीशंस हैं, उनको पूरा करता है। इस फाइनेंस बिल का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना देश में जो व्यवसाय और निवेश फल फूल सके, आर्थिक समृद्धि का आम नागरिकों को फायदा हो सके। जब मैं आम नागरिकों की बात करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच और उनके नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने, जो ये फाइनेंस बिल और बजट रखा है, क्योंकि दोनों पे ओवरलैपिंग कुछ बात आ सकती है, लेकिन इसका हमने देखे कि इसमें एम्पावरमेंट ऑफ द टैक्स पेयर, सतत आर्थिक विकास करना, प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना, इस फाइनेंस बिल का इंटेंट है, मोटो है और ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि ये मानना है कि जब तक छोटे करदाताओं के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनको अगर हम सशक्त नहीं बनाएंगे, तो जितना इनके हाथों में पैसा होगा ये अधिक खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में वो पैसा आएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा आने की वजह से ही भारत, जब हम सोचते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनेगी, वो उसी वजह से बनेगी। अब हम पूरा अगर इसका स्पिरिट देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो इसका बहुत ही एडुकेट है, उच्चतम स्तर का है। और 2023-2024 में अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम इसका देखें तो 11.6% है, और डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.6% है, जो कि शो करता है कि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन जब होता है तभी ही ये अचीव होता है। और इसका पर्पज है मोर पीपल जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, मोर कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट करें, और वो मोर जो लोग हैं वो टैक्स पे करें। अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने, कई लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन जो है फॉरेन कंपनीज पे उन्होंने ऐतराज जताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रिवीलिंग टैक्स, जिससे पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इनके समय में कमजोर क्यों थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कमजोर क्यों थी। आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स जो रिडक्शन हुआ है फॉरेन कंपनीज पे, वो बहुत जरूरी था। उसको 40 से 35% किया गया, क्योंकि हम अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें, टाइमिंग को देखें, कि पोस्ट कोविड के बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कि उन्होंने चाइना प्लस पॉलिसी अडॉप्ट करी। चाइना प्लस पॉलिसी का मतलब सभापति महोदय ये होता है कि वो चाइना से बाहर आना चाहते हैं और ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हब ढूंढना चाहते हैं जो कि उनके लिए टैक्स भी कम हो और कंडीशन हो, पीसफुल हो और इकोनॉमिक कंडीशन की ठीक हो और उनको लेबर भी मिल जाए। तो ये कंपनी जो है अभी अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड चाइना देख रही है, जिसमें हमारे लिए, इंडिया के लिए अगर एक कंपटीशन है तो वियतनाम कंट्री है, थाईलैंड है, टर्की है, तो इन कंट्री से हैं। तो अगर ये टैक्स ये तो 40% है, 35% जो फॉरेन कंपनीज के लिए कम किया गया, उसका नेट इफेक्ट क्या होगा मैं बता दूं आपको कि सबसे बड़ा बात तो ये होगा कि इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, नंबर 1, जो कि पहले नहीं करती थी। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी। इंक्रीज एफडीआई, पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसकी वजह से जॉब क्रिएट होंगे।
boost related sector like logistic, creating further employment in logistic, और उसका consequential effect जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट बाहर होगा, तो हमें उस पे टैक्स भी मिलेगा, उन कंपनीज के ऊपर जो 35% टैक्स है उनकी इनकम पे वो भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात बताऊं इंडिया की, तो आप देखेंगे कि एप्पल इंडिया की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2024 की, एप्पल का टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया करीब 1 लाख एक साल में 1,20,000 करोड़ का हुआ, और उसका एक्सपोर्ट करीब 85,000 करोड़ का हुआ। अब सभापति महोदय देख लीजिए, 1,20,000 करोड़ का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इनकम टैक्स भी मिलता है, टैक्स भी मिलता है 35%। तो हमने 40% से 35% किया, तो हमने ये कंपनी को अट्रैक्ट किया। एक ही नहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी आज की तारीख में ये जो है कंपनी, इसका हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव बाय एनी कंपनी इन ए सिंगल ईयर। और उसके बाद में मैं यूपीए के टाइम में अगर फिगर बताऊं आपको, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यूपीए के टाइम में 2014 तक किया थी 5.3%, 5.3% डिप्लोरेबल। और अभी एनडीए के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ क्या है 2023-24 की 9.9%। इन्होंने टैक्स की इनकी पॉलिसी जो है एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं होने की वजह से इनको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम आ गई। और इकोनॉमिक बेनिफिट जो इसका डायरेक्ट जो 40 से 35% करने का हमारा पोटेंशियल इन इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स कलेक्शन डिस्पाइट लोअर रेट। हाई रेट से कोई टैक्स कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा, लोअर रेट से यू विल अट्रैक्ट मोर एफडीआईज इन इंडिया, दे विल अर्न मोर, दे विल पे टैक्स टू द कंट्री, दे विल जनरेट मोर जॉब्स। आपने ये भी कहा था कि इनडायरेक्ट जॉब जो है, इनफॉर्मल जॉब है, हमें क्रिएट करनी चाहिए, मोवा मोत्रा की स्पीच ने कहा। मैं यही कह रहा हूं कि इनफॉर्मल जॉब क्रिएट करने का यही तरीका है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को, और हमारे सीतारमण जी के इनके बजट इसमें फाइनेंस बिल पे जो इन्होंने इसको 40 से 35% ला करके बाहर की एफडीआई जो है हमारे देश में ज्यादा आएगी, उसमें हमारा जीएसटी कलेक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर 85,000 करोड़ का अगर प्रोडक्शन इंडिया में है तो बिकेगा, तो उसका जीएसटी भी हमें मिलेगा, तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडिया ट्रेड बैलेंस, हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि एक 40% से 35% करने की वजह से उसका ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आता है, हमें वो देखना है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या हो सकता है इसका, आप देखिए, इट विल एनहांस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इट विल इंडिया विल बी ट्रीटेड एज ए हब ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन सपोर्ट्स मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक मेक इन इंडिया नहीं होगा, चाहे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों, चाहे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआईज हों, वो प्रोडक्शन जो है इंडिया में करें, जॉब इंडिया में जनरेट हुए, टैक्स इंडिया में दे, जीएसटी इंडिया में दे, तो हम सोशल स्कीम जो हमारी जो है जो उसमें, और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, और ये सही समय में जो डिसीजन लिया है वो अप्रिशिएबल है। और दूसरी बात, जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है, आप मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इनके जो टाइम में जो बता दूं मैं आपको कि इनके टाइम में जो टैक्स कलेक्शन और अभी जो कंपेयर है, अभी जो टैक्स कलेक्शन है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक कंपनीज का, मैं फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में करीब 11 लाख करोड़ हुआ। और किस वजह से, डेस्पाइट लोअर टैक्स रेट 30% एंड 25% फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आपका प्रिंसिपल हमेशा टैक्स पॉलिसी में ये रहा, हायर द टैक्स, बी से हायर द टैक्स, लोअर द इनकम, सो लोअर द टैक्स, मोर द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। और यही कारण है कि टैक्स कलेक्शन हमारा 11 लाख करोड़ 24 में हुआ, और 2014 में यूपीए के टाइम में सिर्फ 3,90,000 करोड़, एक तरफ 11 लाख करोड़, एक तरफ 3,90,000 करोड़। ये किस कारण से हुआ, क्योंकि इनकी टैक्स पॉलिसी जो थी वो प्रूडेंट नहीं थी, उसकी वजह से देश ने सफर किया और लगातार सफर किया। 2014 में मोदी जी आने के बाद में उनकी दूरदृष्टि और उनकी विजन की वजह से यह संभव हो पाएगा। क्योंकि हम आप देखें कि जब हम देखते हैं डोमेस्टिक कंपनीज का हम कैसे कॉम्पीट करें, इन्होंने कभी नहीं सोचा। ग्लोबल सिनेरियो हम ले गए तो यूके में 25% डोमेस्टिक कंपनीज पे टैक्स है, यूएसए में 21% है, चाइना में 25% है। अगर हम स्लैब इससे बढ़ाते हैं तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी फॉरेन इन्वेस्टर दूसरी कंट्रीज में जाकर के वहां इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो हमें ओवरऑल पूरा ग्लोबल को सोचना पड़ता है और कंट्री के हित में सोच करके ही एक डिसीजन लिया गया। और उसके बाद में अगर आप देखें कि इसका इंपैक्ट बिजनेस पे क्या हुआ, आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट ये ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ बिजनेस की वजह से लगभग रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1,85,000 न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन 23-24, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर मिला,
चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, और उसमें उसकी वजह से और प्रिंसिपल बिहाइंड टैक्स रिडक्शन का मैं अगर मानूं, क्या व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द स्पिरिट, व्हाई दिस रिडक्शन? बिकॉज द इकोनॉमी वारंटेड. Reason is lower rates lead to higher compliance. Once you reduce the tax, everybody will pay. Once you increase the tax, then there will be evasion. So lower rates lead to higher compliance and more economic activity, more jobs. And once more economic activity, this is the reason कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी अचीव कर सकते हैं. और रिजल्ट इसका क्या हुआ? हायर एग्रीगेट टैक्स कलेक्शन हुआ, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो. एंड कॉन्सिक्वेंटली, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, it provides government with more resources for welfare schemes. Otherwise तो कोई welfare schemes नहीं होती. अगर ये resources नहीं होता, मैं GST की भी बात करूं, 23-24 में करीब 20,18,000 करोड़ GST जो है, which does not include other indirect taxes, or else the number would be high. और उसके साथ साथ मैं जब यूपीए की बात करूं, ये डोमेस्टिक कंपनी पे इनका टैक्स था 25% नहीं था, 30% नहीं था, 43% और 34%, जिससे कि प्रोडक्शन और एक्सपेंशन में सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ तो उसी वजह से हुआ. उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? इतना बड़ा टैक्स होने से लोअर टैक्स रेट कलेक्शन लिमिट गवर्नमेंट एबिलिटी टू इंप्लीमेंट इन वेलफेयर स्कीम. और यही कारण था कि वेलफेयर स्कीम हमारी उस समय होती नहीं थी ज़्यादा. अगर आप देखें कि ये बेनिफिशियरी इस टैक्स स्ट्रक्चर था, इस टैक्स पॉलिसी से कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट और फायदा किसका हुआ? सबसे पहले फार्मर्स को. 11,08,80,00,000 फार्मर को जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पीएम किसान के तहत मिला. लगभग 3,11,000 करोड़ किसानों को मिला. कभी सोच सकते हैं कभी इतना पैसा किसानों को मिला पिछले 5 सालों में? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सभापति महोदय, इसको गहनता से सोचने की बात है. मैं कोई पॉलिटिकल इन पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं फिगर बता रहा हूं. 3,11,000 करोड़ पीएम किसान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के 11 करोड़ किसानों से करीब 12 करोड़ किसानों के खातों में भेजा. अगर एक परिवार में 4 तो होते हैं तो 50 करोड़ लोग उससे बेनिफिट हुए. और यही नहीं, दूसरा गरीबों के लिए भी, सिर्फ किसान नहीं, गरीबों के लिए करीब 3,31,00,000 रूरल हाउसेज. कहां से आया पैसा? इसी टैक्स पॉलिसी से. और करीब 1,40,000 करोड़ रुपए जो हैं 2016 से इनके लिए खर्च हुए, चाहे महिला के एम्पावरमेंट के लिए हो चाहे यूथ के लिए हो. जहां पे क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा जो है अगर टैक्स से नहीं आता और टैक्स पॉलिसी प्रूडेंट नहीं होती तो ये वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती. और उसके साथ जल जीवन मिशन आप देखिए, पूरे अपने आप में विश्व में सबसे बड़ी बात है कि जल जीवन मिशन में हर घर पे टैप से पानी देना और लगभग 15 करोड़ हाउस होल्ड, लगभग 60 करोड़ लोग जो है इससे बेनिफिट पाए. तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लोअर टैक्स लीडिंग टू हायर कलेक्शन एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर इनिशिएटिव. एंड लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्रिएटिंग ए वर्चुअस साइकिल ऑफ लोअर टैक्सेस, हायर कंप्लायंसेस, इंक्रीज रेवेन्यू एंड एनहांस्ड वेलफेयर. All these are mixed together, and this is the reason that due to the prudent tax policy this was happen. मैं बिल्कुल एक छोटा सा चार्ट बताऊंगा आपको. टैक्स एग्जेम्पशन की बात करते हैं. इनके टाइम में 2014 तक 2 लाख था डायरेक्ट टैक्स में, अब 7,75,000 है. इनके टाइम में इंफ्रा स्पेंडिंग 1,57,000 करोड़ 2009 से 14 के बीच में 5 साल का, और 2019 से 24 के बीच में 44,30,000 करोड़. आप फर्क देखिए, 1,57,000 करोड़ और 44,000 करोड़ पिछले 5 साल में मोदी जी के टाइम में. और वेल्थ क्रिएटेड, इन्होंने 13 लाख की वेल्थ क्रिएट की 2014 में, और वेल्थ क्रिएटेड 320 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में. और फॉरेक्स एडिशन 50 बिलियन अभी पिछले 5 सालों में, 350 बिलियन. जीडीपी रैंक 10 से 5. तो ये सारा इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये बजट टैक्स पे गया. और अब बहुत इंपॉर्टेंट एक आप देखिए उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट हम कई बार डिस्कस करते हैं. एंडल टैक्स, व्हाट इज एंडल टैक्स? इन्होंने लगाया, क्यों लगाया ये समझ के बाहर की बात है. बहुत बड़े इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने किस पे लगा कि हमारा अगर स्टार्टअप जो इनोवेशन करता है, वैसे कंट्री में इनोवेशन बहुत पुअर था हमारा बहुत टाइम से, लेकिन मोदी जी की सोच थी जब तक हमारा इनोवेशन नहीं होगा, हमारे स्टार्टअप डेवलप नहीं होंगे तो कंट्री में जो है हम वापस रिसर्च जो हम बाहर से लाएंगे. तो इसीलिए एंडल टैक्स मतलब कोई फरिश्ता आकर के लगाता. अगर हमारा स्टार्टअप, हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारा स्टार्टअप अगर वो 1 करोड़ रुपए लगाता, एक एग्जांपल के तौर पे लगाता, उसमें कोई अगर इन्वेस्टर उसमें 2 करोड़ लगाता है, तो पहले क्या होता है कि कंपनी 1 करोड़ की है, आपने 2 करोड़ लगाए, तो आपका डिफरेंस अमाउंट जो है 1 करोड़, उस पर आप 30% टैक्स दीजिए. तो उसको
स्टार्टअप को 30% टैक्स का मतलब 30 लाख टैक्स देना पड़ता। क्या रिसर्च करेगा, क्या इनोवेशन करेगा? लेकिन इसमें एंजल टैक्स को खत्म करना, ये मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी का बहुत बड़ा स्टेप है। और उसमें वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो स्टार्टअप अपना काम कर सकता है। और उसके साथ साथ एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स का इफेक्ट अपना अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स। प्रीवियस सिचुएशन क्या थी? प्रीवियस थी एंजल टैक्स प्रीवियसली डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, और सेकेंडली इट क्रिएट बैरियर फॉर अर्ली स्टेज फंडिंग इन इनोवेटिव कंपनीज। अब रीजन फॉर व्हाई इट इज चेंज, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस टैक्स पॉलिसी चेंज? बिकॉज टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स and foster innovation, aligned with government's vision of making India a global startup hub, and it happened. What is the positive impact? The positive impact is increased flow of capital into new business. Number one, easier for startup to secure funding without tax complications. Enhance attractiveness of Indian startup to domestic and foreign investors. More innovative ideas. We are not now required to get from outside. More innovative ideas getting funded, brought to market. Potential for significant job creation in the startup sector. सभापति महोदय, आप जान करके आश्चर्य होगा, such a small sector, and within a short span of 2016 to 2019, the other data are not available. कितनी जॉब क्रिएट की? जॉब क्रिएट की 7,50,000 जॉब सिर्फ इन स्टार्टअप ने। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्सपीरियंस से 7,50,000। पहले टैक्स था, आपको क्या मिला? टैक्स था तो इन्वेस्ट नहीं करता था इन्वेस्टर, आपने फ्री कर दिया उसको। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और 7,50,000 जॉब क्रिएट की और इनोवेशन हुआ। और उसकी सक्सेस स्टोरी क्या हुई? इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, 114 इंडियन यूनिकॉर्न्स हैव रेज्ड मोर देन कितना अमाउंट? 8,30,000 करोड़ रुपीज, इंक्लूडिंग टू दैट कम्बाइंड वैल्यूएशन ऑफ द यूनिकॉर्न एक्सीड 35 लाख करोड़ रुपीज। ये कभी ध्यान नहीं आया, जो चीज ध्यान में आनी चाहिए। इसीलिए मैं डेटा से बात कर रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा हूं। ये इसको रेस्पॉन्ड करिए आप, क्या जवाब है इनके पास में? आज देश जो 10 साल में बड़ा है वो कभी इन्होंने सोचा होगा। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट पीएम साहब के दिमाग में क्या है, मैं 4 पॉइंट में बता रहा हूँ। सपोर्ट्स इंडिया टारगेट ऑफ हैविंग 280 यूनिकॉर्न्स बाय 2030। अगर आप देखें 114 में इतनी जॉब क्रिएशन होता है, इतनी वेल्थ क्रिएशन होती है, तो आगे आने 2030 तक कितनी होगी? लेकिन मेरा मानना वो टारगेट उससे भी पहले अचीव हो जाएगा। पोजीशन इंडिया एज ए लीडिंग ग्लोबल